what extent can Germany be held responsible for causing the two world wars? So if we see the case of world wars, वर्ल्ड वॉर बहुत ही पेचीदा चीज़ है, ऐसा नहीं कि वो बड़ा आसान है उसको समझना है, किसने किया, कैसे किया, क्यों किया. All those kinds of problems are going to be there. But if we see the role of Germany, yes, Germany is a part of both of them, and on the losing side on both of them. If we see the Treaty of Versailles, the Treaty of Versailles imposed the responsibility of the First World War on Germany. Second World War, we see the rise of Hitler, and eventually he crossing the lanes towards the Poland, which eventually led to the rise of the World War. So Germany is involved in both of them, but same kind of level of responsibility cannot be ascertained in the case of Germany in both of them. In Second World War, yes, it was more or less, even if Hitler did not want a war with the world, his actions were ensuring it. But in the case of the First World War, if I tell you briefly, in the First World War, it was not just Germany who was responsible. It was the Eastern question which was creating the disturbances in the Europe. Austria-Hungary versus Serbia. Austria-Hungary, even though it became reckless because of the blank check given by Germany, कि आप कुछ भी करो हम ब्लाइंड सपोर्ट करने वाले हैं, प्यार मोहब्बत से ही कहते हैं, राइट? So it was Germany, yes, which gave complete support to Austria, but it was the Austria which was the reckless. Austria should be held responsible for the beginning of the localized skilled war in the eastern part of Europe. Russia was the first major power to mobilize. So how can we absolve the actions of Russia? So Russia is also responsible. And once the mobilization came from the side of Russia, eventually even Germany became a part of the war. And later on, when the neutrality of Belgium was violated, even UK became a part of it. So this is how First World War has so many actors who are responsible for the war. In the Second World War, if we go for analysis, A.J.P. Taylor is a famous historian who says that Hitler just wanted a short war with Poland. He didn't want a world war. But naturally, if he was going to attack Poland, as the policy of appeasement had already failed, and it was certainly seen by the British as well as the French, any further aggravation towards the eastern part of Europe was going to cause war. And Hitler was somebody who was very reckless to even take those chances. तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी. अच्छा आंसर तो चलो ठीक है हम लिख लेंगे, लेकिन उससे पहले पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए. इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भाई अगर थोड़ा सा दिक्कत हो आपको समझने में कुछ टॉपिक्स को, then Kranti is a very fantastic course which can make you very clear about all those debates, all those nuances, etc. जिससे कि आंसर राइटिंग का कंटेंट जो है ना उसको पकड़ आ जाए. अगर वो पकड़ नहीं आएगी ना तो हर बार अच्छा आंसर लिखना पॉसिबल ही नहीं होगा. ठीक है, आप ये चीज़ें सीख लीजिए, बट अगर आपको प्रॉब्लम है देन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू आवर काउंसलर. So let us see. First World War and Second World War were the two total war. They were fought between Central Power and the Allied Power. The first one, the second one was fought between Axis and the Allied Power. So कंटेक्स्ट को पूरा सा समझाने की कोशिश करिए इन द इंट्रोडक्शन, एंड आई वुड से ठीक है टोटल वॉर के कंसेप्ट को पकड़ के पूरे वो क्वेश्चन को संभाला इन्होंने एक तरीके से, एंड दैट इज राइट. देन द रीजन फॉर द वॉर इमीडिएटली पुट ऑन जर्मनी एज सीन इन द वर्साइल्स ट्रीटी. तो बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया, बिकॉज it is Versailles Treaty which is coming up with that war guilt clause, and then only it was made to pay the war reparation. तो अच्छा लिखा है, काफ़ी अच्छा तरीके से लिखा है, just like I have explained. Kaiser William provided a blank check to Austria for unconditional support in case of war with Serbia. Its rising national and political ambition can also be seen a reason for the war. It increased in military capacity and economic strength in search for colonies and dispute between France and Britain. According to A.J.P. Taylor, its Schlieffen Plan reduced the time for negotiation. The Schlieffen Plan is very, very famous for this part. However, the sole blame cannot be put on Germany. तो रशिया, ऑस्ट्रिया सबको मिक्स करके आपने ब्लेम देना है, एक को नहीं देना. These three are the major aggressor: Austria, then Russia, and finally comes Germany. तो बहुत अच्छे से लिखा है. I would give very good marks to that person. L.C.F. Turner comes up with a very nuanced kinds of, I would say, explanation of the beginning of the First World War. He said it's a tragedy of miscalculation. Everybody miscalculated in one way or the other. Austria thought it is going to be a small war with Serbia. Nothing much is going to happen. Serbia would not support, just like 1908. Russia thought that this is not mobilization will not be seen as a war by the other countries.
ओके, जर्मनी थॉट इट्स गोइंग टू बी अ स्मॉल वॉर, छोटा मोटा वॉर होगा, ठीक है. So that's why it was a tragedy of miscalculation. If you see Second World War, so Gunter Moltmann had a global said that Hitler had a global policy to increase domination of Germany. His search for Lebensraum, means the living space for the Aryans of Germany, led to that kind of demand for more and more expansion towards the east. He was also trying to break all the systems of Treaty of Versailles, and Habsburg Memorandum indicates precise timetable and ready for a whole-scale war. However, it is considered that appeasement policy of Britain, Versailles, which has imposed terrible provisions on Germany, and eventually comes the viewpoints of A.J.P. Taylor. He did not want a big war, only a short war with Poland. But in the Second World War, irrespective of what they were thinking, the important thing is Hitler was the one who ensured the Second World War. He was just, you could say, becoming a Frankenstein's monster, who was not going to stop unless he is going to have what he wants. And that's why the world powers were required to come together to stop such a menace to the human society. Second World War में ज़्यादा responsibility है, first में कम responsibility है. There it is divided between Austria, Germany and Russia. Here majority of it is going to go to Germany. Some will go to the appeasement policy of Britain and France because they abruptly stopped the policy of appeasement. Some even blame Russia for signing the Molotov Pact in August 1939 because it was this pact which eventually made the Second World War inevitable, because communism and fascism joined hands and the capitalist countries like Britain and France were not going to cooperate anymore. So that is often sometimes also written. So ये प्योर आपका डिबेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है और इसको अच्छा लिखने के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. अगर आप फैक्टर्स लेके बैठ गए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन से फैक्टर थे, सेकंड में, पूरी कहानी खराब हो जाएगी. तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में भाई बहुत अच्छे से हिस्टोग्राफी पे पकड़ होना चाहिए. Hi, so welcome to Prep Career. Today I'm going to discuss about a program which can help you in improving your answer writing skills. Answer writing skills, as all of us know, are very paramount for getting maximum marks in optional. And optional में अगर marks लेके आने हैं तो अभी आपको ये सब चीज़ start करनी पड़ेंगी. So if you are preparing for 2025, हो सकता है कुछ cases में आपका prelims इस साल ना निकला हो, right, in 24. So you have to take the long road. बहुत लंबा road है. आप हम आराम से 3-4 महीने optional को अच्छे से अभी डेडिकेट कर सकते हैं, राइट. सो ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, उसको अच्छे से यूटिलाइज किस तरीके से करें. दिस इज वेयर डॉन कम्स इन. डॉन का जो मेजर फोकस है वो किस चीज़ पर रहता है कि आप लोग आंसर राइटिंग सीखिए. बिकॉज खुद से जब हम आंसर राइटिंग करने जाते हैं वो रेगुलर नहीं रह पाते. कभी सोचते हैं PYQ लिख दे, कभी सोचते हैं कि PYQ सारे रिपीट नहीं होते. देयर इज ऑलवेज एम्बिग्विटी कि लिखना क्या है, इवेल्युएट कौन करेगा, डिस्कशन कौन देगा. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हम क्या करते हैं, 2-4 दिन रेगुलर रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं, जो गैप्स आ जाते हैं प्रिपरेशन के अंदर. इन सब को हटाने के लिए वी आर स्टार्टिंग विद द डॉन प्रोग्राम. दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम द 15th. ओके, मंडे से स्टार्ट करेंगे. नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस टू बी कवर्ड, तो अब हम धीरे धीरे बात करेंगे. मैं आपके साथ शेड्यूल भी शेयर करूंगा इसका कि शेड्यूल में क्या है. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑन डेली बेसिस आप लगभग 2 क्वेश्चंस को लिखने वाले हो, ठीक है. एक का आप आंसर लिखोगे, एक पे आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन टेक्निक विच वॉज एबल टू हेल्प मी इन अचीविंग 324 मार्क्स. दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रमोट कि भाई इसको आप जरूर करिए ऑन अ डेली बेसिस ऑन फ्यू क्वेश्चंस, सो दैट कि हर बार लिखने का हो सकता है टाइम ना हो. सो आप आधे घंटे के अंदर आराम से एक क्वेश्चन लिख सकते हैं और एक को ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट 4 months, है ना, जो 4 महीने ये प्रोग्राम चलने वाला है, यू विल बी एबल टू कंप्लीटली चेंज योर सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग. व्हाट शुड बी दी अप्रोच, तो अप्रोच बहुत सिंपल है. अप्रोच जो होनी चाहिए इस तरीके की होनी चाहिए कि भाई आप अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे एज पर द शेड्यूल इटसेल्फ एंड देन ऑन डेली बेसिस यू विल राइट फ्यू आंसर्स. हाउ टू एनालाइज द आंसर्स, तो वो हम कुछ तो आपको इवैल्यूएशन करके देंगे ही देंगे. एंड फिर आपको जो डिस्कशन मिलेगा वीडियो, उसके बेसिस पे भी आप इवैल्यूएट कर सकते हो क्या अच्छा है क्या बुरा है, स्ट्रक्चरिंग और अच्छी कैसे हो सकती है. हाउ टू इनकलकेट द डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन का बहुत ही एक ही तरीका है अच्छा, दैट यू कैन राइट द आंसर ओनली फॉर 1 day. जो जिस दिन क्वेश्चन आएंगे उसी दिन आपको लिख के नेक्स्ट डे तक सबमिट करना पड़ेगा रफली, कि 1 बजे आपका आंसर हम अपलोड करेंगे, नेक्स्ट डे 1 PM तक आप वो ब्लॉक हो जाएगी विंडो. और डिसिप्लिन इसी तरीके से आ सकता है. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, ऑलवेज देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग वंस, ठीक है. तो आप पेंडिंग में हमें कभी नहीं जाना है.
फोकस रहना चाहिए देखो अपस्किल पे, कि हम अपने आप को अपस्किल करें, राइट। दिस इज़ नॉट अ प्रोग्राम फॉर दो स्टूडेंट उन्होंने कभी हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा ही नहीं है, जो पढ़ चुके हैं, एक लेवल का नोट क्रिएशन कर चुके हैं, हो सकता है स्मॉल नोट्स ना हो, एटलीस्ट हैंडआउट्स हैं, तो उनको आप स्मॉल में नोट्स में कन्वर्ट करें एंड PYQs को सॉल्व करें। दिस इज़ अबाउट अपस्किलिंग, प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली बेसिस पे। देन मेंटरशिप मिलेगी आपको, है ना, यू गेट मेंटरशिप फ्रॉम मी ऑल्सो, फ्रॉम अदर फैकल्टीज ऑल्सो हु आर एसोसिएटेड विद अस फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल। देन ऑल्सो द कवरेज गोइंग टू बी मैसिव, पूरा सिलेबस को ही हम कवर करेंगे। दिस इज रफली द UPMC approach which is going to work with respect to this DAWN program. So if you are somebody who is preparing for 2025, तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। डेली आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है, डेली आपको कुछ आंसर्स लिखने भी हैं, डिस्कशन वीडियो मिलेंगे, मॉडल आंसर्स मिलेंगे, पर्सनलाइज मेंटरशिप सेशन रहेंगे, 4 महीने तक प्रोग्राम चलेगा। 48 आवर्स के अंदर अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपको इवेल्युएट होकर कॉपीज़ मिल जाए। सो दिस इज समथिंग विच इज़ फ्रॉम आवर साइड, ऑलराइट। एंड जैसे हम देखें, देखो कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपको आंसर फ्रेमवर्क मिलेगा, अच्छे से हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में क्या करना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, राइट। एंड पूरे तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा पूरा आंसर। एंड फाइनली जो कंक्लूजन भी होता है उसमें हमें कंटेंट एनरिचमेंट बॉक्स डालते हैं, जिसमें हम बहुत बच्चों को हिस्टोग्राफी में दिक्कत है कि मैं इसमें क्या करूँ, तो हिस्टोग्राफी भी यहाँ पे तरीके से दी होती है। सो इस तरीके से आपके पास बहुत अच्छे मॉडल आंसर्स निकल के आ जाते हैं एंड साइड बाय साइड यू आर एबल टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग। अब देखो हमने क्या किया है कि रफली 21 दिन में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है, 20 डेज ना, तो रफली 1 महीना आपको एक पार्ट में लगने वाला है। इफ़ यू सी लाइक स्टार्टिंग फॉर 15 तारीख से आपको कुछ वीडियोस दिए जाएंगे, इनिशियली 7-8 वीडियोस विच आर रिलेटेड विद आंसर राइटिंग, बिकॉज आंसर राइटिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा पढ़ना भी तो पड़ेगा, थोड़ा समझना भी तो पड़ेगा आंसर लिखते कैसे हैं, तो वो फर्स्ट वीक आप उसमें स्पेंड करिए। वंस यू स्पेंड दिस फ्रॉम 22 स्टार्ट राइटिंग, पोर्टल एक्टिव हो जाएगा आपका, एक्सेस के थ्रू आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे आर्कोलॉजिकल, फिर आपका लिटरेरी सोर्सेज, प्री हिस्ट्री, प्रोटो, इंडस वैली, फिर सैटरडे संडे आप रिवाइज करिए, बाकी चीज़ें भी अगर आपकी प्रायोरिटीज़ हैं GS में उसको भी इनकॉर्पोरेट करिए। देन वीक 2 अगेन एंशिएंट इंडिया, वीक 3, वीक 4, तो लगभग आपका जो वीक 4 होगा वो लगभग फिनिश हो जाएगा बाय 16th ऑफ अगस्त आपका एंशिएंट फिनिश हो जाएगा। तो लगभग 4 महीने देखो ये प्रोग्राम चलने वाला है, और आपको डेली बेसिस पे ये ध्यान रखना कि भाई जो पोर्टल का एक्सेस है वो 1 दिन के लिए मिलता है फॉर राइटिंग आंसर्स, ओके। सो दैट इज़ समथिंग विच वी सी हेयर। तो ओवरऑल जो आपके वर्किंग डे हो जाएंगे, मतलब जो आपको लिखना आंसर्स, वो 80 से 85 के बीच में रहेंगे, ठीक है। और जो प्रोग्राम है वो पूरा 4 महीने के आसपास ही निकल जाएगा, बिकॉज सैटरडे संडे आप इंक्लूड करोगे तो वो लगभग 4 महीने हो जाएगा। सो दिस इज द अप्रोच विद विच यू कैन गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल। बट मेक श्योर दोज ऑफ यू आर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, एटलीस्ट एक लेवल का बेसिक आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तभी आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। इफ़ यू आर समबडी कंप्लीटली न्यू, आई वुड रेकमेंड आप फाउंडेशन कोर्स या AEP के साथ चलिए, ओके, उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु वांट टू बी डिसिप्लिन्ड, कि भाई आंसर राइटिंग सिर्फ नहीं हो पा रही, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं है। सो इफ़ यू आर एट दैट लेवल, मेक योर लेवल बेस्ट, बिकम पार्ट ऑफ दिस, एंड 4 महीने में ना लगभग आपका by the end or by the beginning of November itself, you will be able to finish off this batch. Alright, so all the very best. Thank you so much. इसका पार्ट बनिए और अच्छे से यूटिलाइज करके नेक्स्ट ईयर 300+ मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।